foundation for everything what's happening in life. So we need thorough Bible study for every aspect what we take the decisions. And thank you, Pastor. Pastor George Abraham, our presbyter, and he is also coming regularly and taking the chairmanship of this program. God bless you, and God may use you for His kingdom. And this, without wasting my time, I hand over to Pastor Biju Verghese to be shared from the Word of God, and also Evangelist Justin to translate the message to English to Hindi. Hand over to both the pastors. Thank you very much. It's my joy to be once again with you all on this wonderful evening. धन्यवाद देता हूं और आज संध्या समय में आपके बीच में उपस्थित होना और मेरे लिए एक अति आनंद की विषय है. Thank you, Pastor George Abraham and Pastor Jomon, for those good words you shared about me. And God bless you. और प्रभु का दास पास्टर जॉर्ज अब्राहम जी और जोमोन जी को मैं धन्यवाद देता हूं और जिस तरह मेरे लिए परिचय दिलाने के लिए इतने और सुंदर शब्दों को इस्तेमाल किया है. Also, I want to thank Pastor B.C. Justin for doing a wonderful job translating me from English to Hindi. और अनुवाद करने वाला भाई जस्टिन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं. I greet all of you, all respected servants of God, and all brothers and sisters and children, those who have joined for today's Bible study. आदरणीय पासवान लोग, प्रिय भाई बहन और बच्चे जो भी आज के पवित्र शास्त्र के अध्ययन के लिए उपस्थित हुआ है, उन सभियों को मसीह अभिवादन करता हूं. Our dear children who led the worship today, I greet them in the matchless name of the Lord and Savior Jesus. May God use them mightily in the days to come. जो बच्चे आज की आराधना में अगुवाई किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रभु का गीत गाते हुए आराधना का अगुवाई किया है. परमेश्वर उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए और भी अधिक इस्तेमाल करने पाए. Let us come to our topic on prayer. आइए हम अपनी जो अध्ययन का विषय जो प्रार्थना है उसकी ओर हम आ जाते हैं. Last few days, few hours, we were discussing about that, about prayer, different topics on prayer. और जो पिछले दिनों में हम लोग प्रार्थना के अलग-अलग पहलुओं को हम अध्ययन कर रहे थे. And last night we were discussing the importance given to prayer by the Word of God. और कल रात को हम परमेश्वर का वचन प्रार्थना के लिए जो सविशेष स्थान जो दिया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे. To discuss that point, we used the teaching Jesus made on prayer. और इस विषय को अध्ययन करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा दिया है और उसके बारे जो प्रार्थना के विषय में जो बताया है उसके बारे में हमने देखा. In other words, Jesus taught a lot about prayer, and that shows prayer is very important for a Christian, for a child of God. और दूसरी ओर से अगर कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में कई शिक्षाएं दिया है और उनकी उपदेश में प्रार्थना की शिक्षा जो सविशेष स्थान लिया होने के कारण प्रार्थना कितनी बहुमूल्य है कर हम समझ सकते हैं. Also, we have seen that Jesus himself prayed a lot in his short time of ministry of 3.5 years. और He spent a lot of time in prayer. हम ये भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवकाई में और अधिक समय निकालते हुए प्रार्थना के लिए समय अलग किया जाता था और बहुत ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आप ही करते थे. And that too gives us a clear picture how prayer is important in the Word of God. और यही विषय जो है और प्रार्थना की एक सही चित्र और उसकी सविशेष स्थान और उसकी अहमियत के बारे में एक स्पष्ट चित्र हमें मिलता है. Also, we have seen the servants of the disciples whom Jesus has called to be with him. They
ask Jesus, after observing Jesus for a few days or few months or years, they asked Jesus to teach them how to pray. और जिन चेलों को प्रभु यीशु ने बुलाया था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, और उन लोग भी, और कुछ समय के पश्चात, चाहे कुछ महीने के पश्चात, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना देखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए इस प्रकार की मांग रखता है कि उन्हें भी प्रार्थना सिखाओ, और इस विषय से भी प्रार्थना की अहमियत को हम समझते हैं। They understood prayer is the most important thing in the ministry they are going to do. और उन्होंने इस प्रकार समझ लिया कि प्रार्थना जो है बहुत ही बहुमूल्य एक स्थान लिया जाता है कि उनकी आगे की सेवकाई में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And then we were discussing what are the specialities of Jesus' prayer. और उसके पश्चात हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की सविशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। 2 points, 2 things we discussed. One is relation and the second one is dependence. और इसमें हम 2 बातों को ज्यादा विस्तार से हमने समझा है। एक जो है संबंध, दूसरा जो है निर्भरता है। We'll be coming back to that today's class also, so I am not going to explain that point now. Let us move on. What to do to improve our prayer life? और इस विषय पर जो ये जो महत्वपूर्ण विषय जो है, और जो उसमें जो संबंध और निर्भरता, उसमें हम फिर से आएंगे, इसलिए आज इस वक्त मैं उस पर ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रार्थना को सुधारने के लिए हम क्या कर सकता है। Our topic is how to improve our prayer life. हमारी शीर्षक या हमारी विषय यही है कि हम हमारी प्रार्थना जीवन कैसे सुधार सकता है। So my question is how to do it, or we are going to discuss. Okay, we have learned a lot about prayer. We have learned about the importance of prayer, what the Bible says about prayer, and all those things we have learned. But we have to discuss how we can improve our prayer life. हमने प्रार्थना के विषय में कई बातें जाना है और उसकी अहमियत को जाना है, और प्रार्थना का जो हमारी जो जीवन में किस प्रकार उसकी बहुमूल्य और सविशेषता होता है, ये सारी बातों को हमने जाना है। लेकिन इस वक्त हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारी प्रार्थना जीवन सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा। As I told my introductory session, when we say when we ask this question, how to improve our prayer life, that says we need an improvement in our prayer life. That means we are not in a good prayer. We do not have a good prayer life. और जिस दिन जो परिचय की तौर पर जो हमारे अध्ययन की शुरुआत हुई, और उस दिन मैंने इस विषय को स्पर्श करते हुए कहा था कि हमारी प्रार्थना जीवन थोड़ा सुधारने की जरूरत होती है, और हमारी प्रार्थना जीवन किस स्थिति में है। और ये इस विषय को दर्शाता है कि हमारा प्रार्थना जीवन में सुधारने के लिए गुंजाइश, कई जगह पर गुंजाइश होती है। We have to make our prayer life a better one, that's for sure. और निश्चित तौर पर हमारी प्रार्थना जीवन और सुधारना ही है। So we must discuss how can we do that. और इसलिए हम इस पर संवाद करेंगे कि हमारी प्रार्थना जीवन कैसे सुधार सकता है। We know there are many kinds of prayers, or we may pray in different because of different reasons. और कई कारणों के कारण और प्रार्थना कई प्रकार के होते हैं। There are different kinds of prayers. और कई जो वर्ग की, कई प्रकार की प्रार्थनाएं होते हैं। And many of our prayer life or prayer is a kind of routine, regular kind of prayer. और अधिकतर लोगों का प्रार्थना जो है एक परंपरा या एक रिवाज के एक जो हम करते आ रहा है उसको हम बरकरार रखने वाली तरीके की एक प्रार्थना होती है। Every day there is a particular or set time for prayer.
और हमारी जो प्रत्येक दिन हम प्रार्थना के लिए एक जो Every समय day, को every day. निर्धारित किया है, Every day we have a particular time for prayer. और प्रार्थना के लिए हर दिन हम समय निर्धारित किया है, अलग किया है। And we may all come together in the family. We may all come together for prayer at that time. और हमारे परिवार के सारे सदस्य वो निर्धारित समय पर हम इकट्ठे होते हैं। Some of us have twice a day, or some of us have once a day. और कुछ लोग दिन में एक बार और कुछ लोग दिन में 2 बार इस प्रकार इकट्ठे होते हैं। And maybe sometime before going to bed and just after getting up from your bed, you may have a prayer time. और हो सकता है हम लोग इस प्रकार प्रार्थना कर रहे होंगे कि जिस वक्त हम और हमारी और जो बेड से हम उठते हैं उसी वक्त, और या जो हम सोने के थोड़ी पहले हम प्रार्थना करते हैं। In these prayers, we have a set kind of prayer or set style of prayer. Every day, I think every day, almost the prayer subjects and words and tone and everything will be same. और जो इस प्रकार की प्रार्थना में हमारी एक शैली होता है, और हर दिन हमारे शब्द, हमारी शैली और हमारी तरीका एक ही जैसे होता है। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Can you just think about your prayer? आप आपकी प्रार्थना के बारे में जरा सा आप विचार कर सकते हो। If you had prayed yesterday night, आपने think about the prayer. Think about the prayer you did yesterday and day before yesterday. कल बीते हुए परसों आपने किस प्रकार प्रार्थना किया, इसके बारे में जरा सा आप सोचिए। Almost the same words. और जो उसी शब्दों से आप लोग प्रार्थना करते आ रहा है। Almost the same sentences. और जो हर दिन एक ही जैसे और वाक्यों को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करते आ रहा है। Almost the same style. और जो हर दिन एक ही शैली से प्रार्थना करते हैं। In a way, the prayer is the same. Yesterday we prayed the same thing we pray today, and tomorrow we will be repeating the same prayer. अगर कहा जाए और बीते हुए परसों को हम जिस प्रकार प्रार्थना किया, कल भी उसी प्रकार प्रार्थना किया, और दूसरी जो तरीके से अगर बताया जाए, हम अपने प्रार्थनाओं को दोहराते ही जा रहा है। Only the day changes, even time, most of the time it doesn't change. और केवल दिन बदलते जाते हैं, और अक्सर जो जिस समय पर इकट्ठे होते हैं या प्रार्थना करते हैं वो भी नहीं बदलता है। And of course you are praying. और ये तो सच है, प्रार्थना कर ही रहा है। But these prayers are very routine prayer, and let me tell you, these prayers are not at all going to be effective. और ये जो है हमारी जीवन में, हमारी जो जीवन में और जो एक रीति रिवाज के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते आ रहा है, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये प्रार्थना से कोई फल या कोई फायदा नहीं होने वाला है। If you have a prayer life like this and you say, I am a praying man, I am a praying woman, and I pray, let me tell you, my dear brother and sister, you have to change your prayer life. You have to make your prayer effective. You have to change the style of your prayer. और अगर आप लोग इस प्रकार कहते हो कि मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ और इसी प्रकार प्रार्थना करते आ रहा है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना और प्रभावशाली नहीं होगा, इसलिए आपकी प्रार्थना की शैली को बदलना ही होगा। See, there is no life in that prayer. आपकी प्रार्थना में जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। There is no relation in that prayer. उस प्रार्थना में कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। You just repeat the thing what you prayed yesterday. You pray today, and you're going to pray tomorrow, and day after tomorrow you will be praying the same thing, and you repeat it, and there is no relation at all in that prayer.
और जिस प्रार्थना आपने कल जो किया है आज भी वही कर रहा है, आने वाला कल में भी और परसों भी आप लोग इसी प्रकार करते आ रहा है। आपकी शब्दों को, आपकी वाक्य, आपकी शैली एक ही प्रकार की हो रहा है, एक ही शैली में जा रहा है। आपकी प्रार्थना में जो संबंध या रिश्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। Let me tell you, it's a dead prayer. और ये एक मरा हुआ प्रार्थना है। It's sure, and it is very much necessary. You have to change your prayer life. और प्रियो, ये अति आवश्यक समय हुआ है कि आपका प्रार्थना की शैली जो है वो बदलने की समय निकट आ चुका है। And there is a second kind of prayer. और एक दूसरी प्रकार की प्रार्थना भी होती है। And some other people, they are little more, what do we say, good in prayer. और कुछ अलग तरीके के प्रार्थना जो लोग कुछ और भी, और जो अपने विश्वास में और प्रार्थना जीवन में थोड़ा सा उत्तम है। Okay, they pray in their life. They have a kind of a different kind of prayer. They may sometimes find more time to pray. और वो लोग, उनकी प्रार्थना की शैली थोड़ा सा हट से है और वो लोग शायद थोड़ा सा ज्यादा ही समय प्रार्थना में और बैठते होंगे। Let me put it that kind of prayer in this way, burdened prayer. और उस प्रार्थना को मैं इस प्रकार बताना चाहता हूं कि और बोझ से जो प्रार्थना करते हैं। You pray because of a burden. और आप एक बोझ के कारण प्रार्थना करते हो। I'm going to explain that. उसको मैं वर्णन करने जा रहा हूं। There's going to be different kinds of burden. और अलग अलग प्रकार की बोझ हो सकता है। Some people, they have a burden for prayer. When they see the people perish, they pray, "Oh God, open your eyes and see these people are perishing. Send your word and save our people." And they have a real burden. और कुछ लोग बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं जब जो नाश की ओर कूच करने वाले लोगों को देखते हैं, उनकी आत्मा को देखते हुए, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपका वचन उनकी ओर भेज और उनकी परिवर्तन के लिए कुछ सहायता कर। इस प्रकार बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। Without external pressure, they take up burdens and they go and pray. और कोई बाहरी तौर पर मजबूर ना करते हुए या इस प्रकार की कोई विवश ना होने के कारण भी वो लोग आत्मा के बोझ के कारण प्रार्थना करते हैं। Such prayers are effective. और उस प्रकार की प्रार्थना जो है प्रभावशाली होती है। Such prayers are going to change the world. और उस प्रकार की प्रार्थना इस दुनिया को बदलने जा रहा है। You know, in many places of the world, revival was brought down by such prayers. और क्या आप जानते हो, और हमारी विश्व की अलग अलग स्थान में और जागृति इस प्रकार की प्रार्थना से हुई है। Seeing the situation of the people, seeing the situation of the church, seeing the situation of a country, when people start to cry without any external pressure, by the burden of the Holy Spirit, by the burden given by the Holy Spirit, when they pray for a revival, when they pray for power to come down, God will send his fire and revival will start. जब लोगों की परिस्थिति देखते हैं और जो कलीसिया की परिस्थिति और उस देश की परिस्थिति देखते हैं, तो और परमेश्वर के सामने बेदारी बेचने के लिए वो लोग गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आत्मा की बोझ के साथ वो लोग प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना के जरिए और परिवर्तन किया है और वहां पर जागृति और बेदारी बेचा है। And we need such prayer warriors, such prayers we need nowadays. And if God willing, we will be coming to that in a later on. और हमें इस प्रकार की प्रार्थना की योद्धाओं की जरूरत है, और इस प्रकार की प्रार्थना हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर समय देता है प्रभु ने तो हम इस विषय पर आ जाएंगे। But there is a second kind of burden. और एक दूसरी प्रकार की एक बोझ भी होता है। Suppose you go to your church on a Sunday. और इस प्रकार आप कल्पना करें कि आप रविवार को आपकी कलीसिया में जा रहा है, and their pastor says, "Somebody please raise your voice and pray." और वहां पर पासवान जी इस प्रकार आपको बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। And there will be a silence for a long time.
और हो सकता है उस समय में और खामोश जो है थोड़ी देर के लिए छाया रहता है Everybody will be thinking somebody else, let somebody else pray. और जो सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि कुछ कोई और लोग प्रार्थना करेंगे And most of the time people thinks like this. That's what I think. Oh, why that person is not praying? Why this person is not praying? If he is not praying, I have to pray. Somebody else let them pray. और कभी कभी इस प्रकार हम लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति क्यों फलाना व्यक्ति क्यों प्रार्थना नहीं करता है अगर वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते हैं तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत होती है इस प्रकार हम सोचते हैं At last, nobody prays, and I am pressured to. I have a pressure of what pastor think or what others think. So let me at least let me pray. और कोई और प्रार्थना नहीं करते हैं तो इस प्रकार हम सोचते हैं और दबाव में आते हैं और पास्टर जी क्या सोचेंगे इस प्रकार सोचते हुए हम प्रार्थना करते हैं Am I right? Many prayers are like that, right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ इस प्रकार की कई सारे प्रार्थना होता है This is also a kind of burden to prayer. यह भी एक प्रकार की बोझ होता है You are pressured to pray. और आपको दबाव मिल रहा है आप तनाव में आकर प्रार्थना कर रहा है This is not an effective prayer, my dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों बहनों ये कोई प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होती Of course, you may be the only one person praying. और ये हो सकता है आप ही एक ही व्यक्ति होगा जो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं And every day in the church or every Friday, every Sunday, you are the only one praying, but this is not an effective prayer. हर शुक्रवार को हर रविवार को शायद आप ही केवल एक व्यक्ति होगा जो प्रार्थना करते हैं लेकिन ये एक प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होता है You pray because of an external pressure. आप जो प्रार्थना इसलिए एक बाहरी दबाव के कारण करते हैं And these kinds of prayer, if you follow, if you are the honor of custodian of such a prayer life, let me tell you today, you have to change your prayer life. You have to change your prayer style. इस प्रकार की बाहरी दबाव से अगर प्रार्थना करते हो अगर आप सोचते हो कि मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपकी प्रार्थना की तरीका और आपकी प्रार्थना की शैली बदलना है प्रिय भाइयों और बहनों मैं आप लोग से इस बात का बताना चाहता हूं So to make your prayer life improved or to improve your prayer life, you must make your prayer effective. और आपकी प्रार्थना और जो सुधरने के लिए आपकी प्रार्थना और भी प्रभावशाली होना पड़ेगा If you have a routine prayer style, or if you are most of the time pressured to pray, such prayers are not at all going to be effective. और आपकी प्रार्थना एक रिवाज की तौर पर चलते आ रहा है और आप एक बाहरी दबाव के कारण प्रार्थना कर रहा है तो आपकी प्रार्थना की शैली जरूर बदलने की समय आ चुका है Such prayers are not going to make any change. Such prayers are not going to bring any change anywhere. तो इस प्रकार की प्रार्थना और कहीं भी कोई भी और फलस्वरूप नहीं होता Such prayers are waste. इस प्रकार की प्रार्थना जो है और बिल्कुल और कोई काम का ही नहीं है Let me tell you, there is no relation in that prayer. उस प्रार्थना में कोई रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है In such prayers, there is no dependence. और उस प्रार्थना में कोई निर्भरता की कोई भी अंश नहीं होती है To make your prayer effective, you need to have relation in that prayer. आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होने के लिए आपकी प्रार्थना में एक रिश्ता होनी चाहिए You need to have dependence in that prayer, which Jesus showed. और उस प्रार्थना में और जो निर्भरता होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है And in that prayer, there must be a cry for God's will be done as Jesus taught. और उस प्रार्थना में एक दुहाई और एक चिल्लाकर जो रोने वाली एक स्थिति होनी चाहिए और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया Let us take the example of the prayer taught by Jesus.
प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना उदाहरण के तौर पर हम ले और उस पर अध्ययन करें। When Jesus taught his disciples to pray, he just started like this. So he taught like this. When you pray like this. और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना का विषय में जो सिखा रहे थे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि आप इस प्रकार प्रार्थना करें। Our Father, it starts like this. Our Father in heaven. और वो प्रार्थना इस प्रकार शुरू होता है कि हे हमारा पिता जो स्वर्ग में है। We are going to just take that phrase for a time. और थोड़ी देर के लिए हम उस शब्दों को हम मनादी करने जा रहा है। See what is the phrase Jesus used there? Our Father in heaven. और यहाँ पर जिन शब्दों को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल जो किया है उस पर ध्यान दे, वो इस प्रकार बता रहा है, हे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है। That phrase clearly gives a relation. और इस शब्दों पर एक रिश्ता को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दर्शाया है। We see a relationship. यहाँ पर हम एक रिश्ता को देखते हैं। We see a closeness. और यहाँ पर हम एक घनिष्ठ संबंध को हम देखते हैं। You know, this is the salutation, and this is not at all a Jewish kind. और देखिए ये अभिवादन जो प्रार्थना में यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है, ये एक यहूदी और जो परंपरा के अनुसार नहीं किया है। You examine the whole the Old Testament, you can't find such a prayer in the Old Testament. आप संपूर्ण पुराना नियम को आप टटोल कर देखिए और वहां पर इस प्रकार की एक अभिवादन दिखाई नहीं देंगे। Jewish people, they never used such a word. और यहूदी लोग इस प्रकार की शब्द को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है। They never dared to address God, their Father. और यहूदी लोग कभी भी परमेश्वर को पिता की तौर पर अभिवादन नहीं करता है। And many places you see it's like this, a father, a God who is God of Abraham, Jacob, Isaac and Jacob and so on, such kind of introductory words as you see in many OT prayers. और जो पुरानी नियम की प्रार्थना में हम इस प्रकार की अभिवादन देखते हैं, परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब की परमेश्वर। And that too, they make a connection through their fathers to them. God, their father's God, and through them, their father. Their God. It's not their father, their God. यहाँ पर यहूदी लोग इस प्रकार की एक रिश्ता बना रहा है, परमेश्वर के साथ उनकी पूर्वजों की, पूर्व पिताओं की रिश्ता जोड़ते हुए, और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। And even they never use the covenant word, covenant name of God, Yahweh. They never use that word. और प्रार्थना करने के समय में यहूदी लोग जो वाचा का जो शब्द परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, यहोवा शब्द को भी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। And when that word comes, they say Adonai. और जब ये यहोवा की शब्द आता है, उस समय में अदोनाई बोलता है। So they never use such a word. And when we examine the whole Old Testament, there are only 14 or 15 times God is explained as, God is presented as the Father. और जब हम पूरी पवित्र शास्त्र की पुराना नियम को अगर हम जांचेंगे, और तो वहां पर केवल 14 या 15 ही बार जो परमेश्वर को पिता की तौर पर जो अभिवादन करते हुए प्रार्थना किया है। And it's not they are doing prayer. They have just termed God as the Father. That's all. It's not और जो परमेश्वर को केवल 14 या 15 बार ही और पिता के तौर पर चर्चा किया है। That too not in a personal relation. They say, okay, God as the Father or creator of everything is the Father of them too. और वो भी व्यक्तिगत तौर पर कोई इस प्रकार का जो चर्चा नहीं किया है, वो इस प्रकार बताया है, परमेश्वर जो है सबका सृष्टि
है और इस प्रकार बताते हुए एक पिता की तौर पर और जो सर्वसाधारण और सामाजिक तौर पर वो लोग इस्तेमाल किया है। And you remember, if you go to John chapter 15, verse 17 and 18, they tried to kill him or throw him because he said his father is God. About Jesus, the Bible says, John chapter 15, it says. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय की 17 और 18वां पदों को जब हम देखेंगे तो वहां पर जो यहूदी लोग और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस प्रकार की दोष आरोपित करता है कि वो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह पिता की तौर पर अभिवादन करने के कारण वो लोग इस प्रकार यीशु मसीह पर क्रोधित हुआ है। See, if somebody called God their father, they considered it as a blasphemy. अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को पिता की तौर पर अभिवादन करते हैं तो वो लोग एक ईश्वरीय निंदा की तौर पर उस विषय को मानते हैं। They considered it as irreverent. और वो लोग इस पर परमेश्वर को निरादर किया हुआ उस प्रकार वो लोग समझते हैं। So they never had that mentality of accepting God as their father. वो लोग कभी भी परमेश्वर को पिता की तौर पर वो लोग अंगीकार नहीं करते हैं। But here Jesus, he just revolutionized or he just changed the entire concept of prayer and made the prayer beginning in this way, our Father in heaven. लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो पिता परमेश्वर को पिता के तौर पर कहने के कारण और एक क्रांतिकारी के तौर पर उसकी और जो प्रार्थना की शैली को और वहां पर एक पिता का संबंध के साथ जुड़ाते हुए वहां पर दर्शाते हैं। He brought the true relationship into the prayer. और परमेश्वर के साथ जो सही रिश्ता है उसको प्रार्थना में ले आता है। It is not that you go just stand before him and say all your requests, all your needs as before a king. You can just go and sit with him as he is your father. You can sit with him and you can share all your concern with him. That kind of intimacy is required or needed in an effective prayer. और एक प्रभावशाली प्रार्थना में और प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रकार सिखा रहा है, आपकी सारे विषयों का निवेदन लिए हुए एक पिता के पास जिस प्रकार जाते हैं, एक घनिष्ठ संबंध पिता के साथ रखने के कारण आप अच्छी तरीके से उनके सारे बातों को बता सकता है, ना कि एक आपका निवेदन लिए हुए या आपकी जरूरतों लिए हुए एक राजा के पास जाए और उसके सामने खड़े होते हुए बोलते हैं। Father in the sense born of him. और पिता के मतलब ये होता है कि और उससे जन्माया हुआ। That's what we read in John chapter 1 verse 12 and 13 and John chapter 3 verse 16. और इसी विषय को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में और 3:16 में देखते हैं। And even Galatians 4 verse 6 says his spirit is in you. और ये गलातियों की पत्री 4:6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा तुझ में है। Yes, my dear brothers and sisters, we have his life in us and he is our father. और प्रिय भाइयों और बहनों, उसका जीवन हम में है, वो हमारा पिता है। We have a very personal relationship with him. उनके साथ हमारी व्यक्तिगत रिश्ता है। Without recognizing that personal relationship, if you and I come to prayer, such prayers are empty. और इस प्रकार की व्यक्तिगत रिश्तों को पहचानते बिगर अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना शून्य होगा, वो बिल्कुल खोखला होगा। Whenever you sit for prayer, think that you are going to pray or you are going to sit with your Father. जब भी आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठते हो तो इस विषय को जरूर समझिए कि आपका पिता के साथ आप संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के साथ संबंध रखने के लिए आप बैठे हैं।
And if you have that thinking in your mind, if you start praying with that concept, I'm sure that you will never say the old prayer. और इस आशय के साथ प्रार्थना करने लगोगे तो बिल्कुल आप कभी भी एक पुरानी एक रीति रिवाज की प्रार्थना आप नहीं करेंगे. And then we say, many times we say prayer. और अक्सर हम लोग इस प्रकार कहते हैं कि हमने प्रार्थना बता दिया. Without any spirit, without any power, you just say and you just leave. और बिल्कुल आत्मा की कोई सामर्थ ना होते हुए और बिल्कुल कोई प्रभाव ना होते हुए आप प्रार्थना कहते हो और वहां से निकल जाते हो. If we just say and we just live, that prayer is not going to make any change anywhere and to anyone. और मैं आप लोगों से इस प्रकार बताना चाहता हूँ, इस प्रकार की प्रार्थना कोई व्यक्तियों का जीवन में और कोई परिस्थिति में और किसी भी काम का नहीं है कर मैं बताता हूँ. If we want to change somebody, if we want to change someone and something, we need to change our style of prayer. और किसी का जीवन में या किसी व्यक्ति या किसी विषय का जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमारी प्रार्थना की शैली को बदलना होगा. We must understand the importance of this relationship. और ये रिश्ता की और श्रेष्ठता को और महत्व को हमें पहचानना है. We must understand the intimacy of this relationship. और इस रिश्ता की घनिष्ठता को हमें समझना है. Don't just go and sit with your father and say something and get off. और यूं ही जाकर उनके सम्मुख बैठते हुए कुछ भी कहते हुए वहां से आप बाहर ना आए. Don't go to him with a thinking, as soon as I could finish my request, I have to live. और इस प्रकार के एक विचार के साथ उसकी उपस्थिति में ना जाए और जैसे मेरी बातों को मैं उसके सामने उपस्थित किया जाए वहां से तब से मैं वहां से जा सकता हूं, इस प्रकार सोच करना चाहिए. Because he is your father and he is our father and he wish we sit with him for a long time. और वो आपका पिता है, वो हमारा पिता है. वो इस प्रकार पिता परमेश्वर इस प्रकार चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में और समय बिताएं और उनके सामने बैठे रहें. As long as you find time to sit with him, he is ready to sit with you. और जितना समय आप उनके उपस्थिति में बैठना चाहते हो उतना समय तक आपके साथ बातचीत करने के लिए वो भी तैयार बनता है. Let me tell you, my dear brothers and sisters, he is not at all in a hurry, but most of the time we are in a hurry. और प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ पिता परमेश्वर बिल्कुल और जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी प्रार्थना समाप्त करने के लिए हम लोग जल्दी करते हैं. We just want to hurry it and finish it and go off. और हम लोग जल्दीबाजी करते हुए खत्म करते हुए वहां पर खाली करना चाहता है. That's why our prayers are very dry. इसलिए हमारी प्रार्थना इस प्रकार की ऊसर प्रार्थना होती है. Do we want to continue with this dry prayer? क्या आप इस प्रकार की ऊसर प्रार्थना आगे बरकरार रखना चाहते हो? I know we have a desire to change it. That's why we come to study the Word of God. और मैं जानता हूं हम सभी और एक इच्छा रखते हैं कि हमारी प्रार्थना की शैली बदल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस अध्ययन करने के लिए आए हैं. If that is your real desire, let us take a decision to change our prayer style. ये आपकी और जो सच्चा मन होती है, अगर आपकी और ये सही इच्छा होती है तो आइए हम समय निकालते हुए हमारा प्रार्थना को बदलने के लिए प्रयास करें. My dear brothers and sisters, when we talk about relationship, it talks about love. प्रिय भाइयों बहनों, जब हम रिश्ता के बारे में बताते हैं तो हम प्रेम के बारे में बताते हैं. That's what we read in John chapter 3 verse 16. और इसी विषय को हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं. Can you just put that verse? John chapter 3 verse 16, it says, whoever
believe in him, he has given the authority. Sorry, can you read that verse? क्योंकि John chapter 2. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. There it says, God has loved the world so much and he gave his only begotten son so that no one should perish but will have the eternal life. देखिए प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है, जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है. My dear brothers and sisters, when we say this God is our father, he loved so much. प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमें अधिक प्रेम करते हैं. He loved more than his own only begotten son. और अपनी एकलौता पुत्र से भी अधिक प्रेम हमारे ऊपर दर्शाया. Anytime do we have an experience of that intense love when we come to pray? क्या आपने कभी भी इस प्रकार की एक घनिष्ठ संबंध और आपकी प्रेम परमेश्वर की प्रेम आपने प्रार्थना में अनुभव किया है? If you don't feel such a love in your prayer life, let us take a decision. Lord, I want to change my prayer life. इस प्रकार की एक अनुभव आपने महसूस नहीं किया है तो आप निर्णय लीजिए कि हे प्रभु जी, मेरा प्रार्थना जीवन मुझे परिवर्तित होना चाहिए. Effective prayers are always intense with such a strong feeling of love. और प्रभावशाली प्रार्थना प्रेम की इस प्रकार की और जो कनिष्ठता को अनुभव करते हुए जो प्रार्थना करते हैं उसमें दिखाई देता है. And when you sit in the presence of prayer, you feel that love and you are in that love. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए बैठते हो, आप उस रिश्ते को महसूस करते हैं और आप इतना करीब प्रेम को आप अनुभव करते हैं. And your heart will be filled with prayer for your Father who is in heaven. और आपकी प्रार्थना जो पिता के और जो परमेश्वर जो पिता जो है जो स्वर्ग में विराजमान है वो उसको अनुभव करते हुए आपका हृदय उमंग होगा. Your heart will be filled with love for your Father in heaven. और परमेश्वर जो स्वर्ग में है और उनके प्रति आपका हृदय और प्रेम से भर जाएगा. If you don't feel such a love while you pray, और इस प्रकार की प्रेम आपकी प्रार्थना में आप अब अनुभव नहीं करते हैं तो our prayers are dry. हमारी प्रार्थना निर्जल होती है. Such prayers are not going to make any change. उस प्रकार की प्रार्थना कोई परिवर्तन नहीं लाता. So when we talk about relation, it talks about love. जब हम रिश्ता को बताते हैं तो वहां पर हम प्रेम के बारे में बताते हैं. And secondly, it talks about access. और उसके बाद में हम दूसरे बिंदु के तौर पर हम प्रवेश के बारे में बताता है. In the Old Testament, people could go up to the first place, the first part of the temple only. और जो पुराने नियम में और जो यहूदी लोगों को केवल जो मिलाप वाले तंबू के पहले भाग यानी आंगन तक ही प्रवेश होता था. They could never go to the holy or holy of holies. और ये जो यहूदी लोग पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान में बिल्कुल जा नहीं पाता था. But when we read Hebrews chapter 10 verse 19 and 20, जब हम इब्रानियों की पत्री 10 का 19 और 20 को पढ़ेंगे, the writer of Hebrews says, because of Jesus, you can go unto the throne of grace, which is in the holy of holies. और इसमें जो हिब्रू पत्री का जो लेखक इस प्रकार हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम अति पवित्र स्थान तक जा सकते हैं. Yes, my dear brothers and sisters, we got this access because God is a Father. और प्रिय भाइयों बहनों, हमें ये प्रवेश इसलिए मिला है कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता होने के कारण मिला है.
Not that you go afar and stand afar and you pray, oh God, I'm not able to come to your presence. I'm not worthy to come to your presence. You just hear me. It's not like that. You can go unto the Holy of Holies. You can go unto the throne of grace and you can call him Abba Father. ये वैसा नहीं होता है। आप जो आंगन में रहते हुए और जहां पर पवित्र स्थान या आदि पवित्र स्थान में जा नहीं सकते हैं, वहां पर रुके हुए आप लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं नालायक हूं, मैं आपके पास आने के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। इस प्रकार ना बताते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि आप आदि पवित्र स्थान में या अनुग्रह की सिंहासन तक आप जाकर परमेश्वर पिता जो है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। But many of us, while pray, we don't use the opportunity to go unto the throne of grace. अधिकतर लोग जब प्रार्थना करने के समय में जो अनुग्रह की सिंहासन तक प्रवेश ना करते हुए और उसकी पूरी फायदा ना उठाते हुए प्रार्थना करते हैं। As I told you in the beginning, we just want to finish it as early as possible, as much as possible, and we just want to go off. और जिस प्रकार मैं शुरू में ये स्मरण दिलाया था कि हम जो प्रार्थना जो कहना चाहते हैं और जितने जल्दी हमें प्रार्थना कदम करना चाहते हैं उतना तक ही प्रार्थना करते हुए जल्दी से समाप्त करते हुए वहां से निपट जाते हैं। So if you go into the Holy of Holies, it will take some time. So you have to go, you have to sit and say and talk to him and come back. We don't have much time. We can just go and say a prayer and finish it off. और जब आप अति पवित्र स्थान में जाते हो तो थोड़ा सा समय लेगा, आपको वहां बैठना होगा, परमेश्वर से बातचीत करना होगा। इतना समय हम ना लेने के कारण आप जल्दी से जल्दी हमारी प्रार्थना समाप्त करते हैं और वहां से निपट जाते हैं। Because of this, our prayers are very ineffective. इसके कारण हमारी प्रार्थना बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होती है। Let us take this freedom. Let us use this opportunity to go unto him, go into his presence and be with him and tell him what are our concerns, what are our needs. Let us take this time to go into his presence. और हम इस प्रकार की अब जो स्वतंत्र लें और स्वतंत्रता अनुभव करते हुए और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए समय निकालते हुए और हमारी जरूरतों को, हमारी सारी विषयों को परमेश्वर की उपस्थिति किया जाने के लिए आप समय निकालें और वहां पर जाएं। When you call him your father, you get that freedom to access him. जब आप परमेश्वर को पिता कह लेते हो तब आपको और उस जगह तक जाने की आजादी और स्वतंत्रता मिलते हैं। Hello. Praise Lord, Pastor. I am audible. Okay. So we have seen relation. When we talk about relation, it talks about love, it talks about access, and thirdly, it talks about security. और जब हम इस प्रकार जो देखते हैं कि वहां पर आजादी है और वहां पर प्रवेश है, वहां पर एक रिश्ता दर्शाई देता है और अगली विषय जो है वहां पर सुरक्षा होती है। When we read John chapter 10 verse 29 and Romans chapter 8 38 and 39, then we see nobody can take them from him. जब हम यूहन्ना 10:29 और रोमियो की पत्री 8:30 पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार देखते हैं कि और तो उनके हाथ से हमें कोई भी छीन नहीं ले सकता। Yes, my dear brothers and sisters, this relation gives us a security, और प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, ये रिश्ता जो है हमें सुरक्षा देता है। A security nowhere else we get. और ये ऐसी एक सुरक्षा है कहीं और से हम इस प्रकार की सुरक्षा नहीं पा सकता है। And this security is in his presence only. और ये सुरक्षा जो है केवल उनकी उपस्थिति से मिलता है।
Why we should hurry leaving this secure place, my dear brothers and sisters? और इस प्रकार की सुरक्षा स्थान से और दूर जाने के लिए हम क्यों जल्दीबाजी करते हैं? Let us take our time. Let us spend our time in this secure place where no harm can come upon you. और प्रियो, इसलिए इस प्रकार की सुरक्षा स्थान में और जो समय बिताते हुए उन्हीं के साथ हम रहें और समय खर्च करते हुए उनके पास रहें, ताकि हम इस प्रकार की सुरक्षा कहीं और पा नहीं सकता। Why to be in a hurry to live? Nowhere else you get such a security. और इस प्रकार की सुरक्षा स्थान से और जल्दीबाजी करते हुए क्यों जाते हो? क्योंकि इतनी सुरक्षा कहीं और से हम नहीं पाते हैं। Let me rush through. And fourthly, this relation speaks of a resource. और चौथी विषय में आप लोग से बताना चाहता हूं कि ये रिश्ता जो है हमें और प्रावधान देता है। And Philippians, let us to the Philippian church, chapter 4, verse 19. It says, God shall bless you with all his abundance. और फिलिपियों की पत्री चौथी अध्याय में इस प्रकार बोलते हैं कि और परमेश्वर सारे विषयों को और उनकी बहुतायता से हमें दे देगा। Because he is a father. क्योंकि वो हमारा पिता है। Why to be in a desperate situation? Nothing is there for me. No one is there for me. और इस प्रकार की कोई निराशाजनक स्थिति में हम क्यों जाना है और मेरे सहायता के लिए कोई नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है, इस प्रकार ना सोचें। Such a blessed resource which never dry up is there for us, and why to worry about anything, my dear brothers and sisters? और इस प्रकार की सारी प्रबंध और इस प्रकार की सारी स्रोत प्रभु ने हमें देता है। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने से हमें इस प्रकार की प्रावधान की प्राबंध होती है। और इसलिए प्रियो, और क्यों हम इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं? Where you can go and satisfy your thirst, where you can go and satisfy your hunger, other than this God, this Father's presence and his throne. परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर, परमेश्वर की सिंहासन छोड़कर कहीं और आपकी प्यास मिटाने की पानी मिलेगा? कहां पे आपको आपका भूख मिटाने का भोजन मिलेगा? Why shall we going here and there? Why shall we running here and there in search of something to satisfy us when there is everything in his presence to satisfy you and me for the whole lifetime? और आपकी पूरी जीवन भर तृप्त होने के लिए सारी और जो प्रबंध परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए भी आप कई अन्य जगह पर क्यों जाते हो? आपकी कोई भी जो छोटा विषय को तृप्त होने के लिए किस लिए वहां पर जाते हो? Yes, my dear brothers and sisters, there is sufficient in his presence for you and for me and for everyone, and let us go to him as dearly loved children. और प्रिय भाइयों और बहनों, और परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमारे पिता हैं, उनकी उपस्थिति में हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्रोत हमेशा रहता है। इसलिए उनकी प्रिय बच्चों के संतानों के समान हम उनके उपस्थिति में जाएं। And forgetting all this and living every relation with this God, we just go and say a prayer and we leave and we make our life a failure. और हर बातों को भूलते हुए और जो रिश्ता को भूलते हुए और उनकी उपस्थिति में जो प्रावधान होती है और जिन जिन विषयों वहां से मिलते हैं, इन सारे बातों को भूलकर हमारी प्रार्थना को हम बहुत ही कम करते हुए हम और इन सारे सौभाग्यों को आप त्याग देते हैं। Leaving this relation behind, leaving this intimacy behind, you cannot make your prayer life intense, you cannot make your prayer effective, and you cannot improve your Christian life.
इन सारे बातों को भूलकर जो रिश्ता के विषय में जो पिता परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसको भूलते हुए आप आपकी प्रार्थना जीवन को और जो सुधार नहीं सकता है, आपको प्रार्थना जीवन और भी तीव्र और प्रभावशाली अगर बनाना है तो इन दोनों विषयों को याद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। Though I have many things to share about this, I have no time. I just want to rush through a few points and just finish today. And as we were talking about relation speaks of love, access, security, and resource. और मुझे कुछ और भी बातों को बोलना तो है, लेकिन समय की वजह से मैं शीघ्र गति में आगे बढ़ना चाहता हूं। जो रिश्ता के विषय में जब हम जो अध्ययन कर रहे थे वहां पर हमें जो वहां पर प्रेम होता है और घनिष्ठता होता है और वहां पर जो सुरक्षा होती है और इन बातों को हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़े। This relation demands us a few things. और ये रिश्ता जो है हमारी जीवन में कुछ विषयों को मांगता है। First of all, it asks us to obey. और सबसे पहला विषय है हमें उन बातों की आज्ञाकारी बनने के लिए बताता है। Matthew chapter 12 verse 50, when you read, then it says, if you obey, you are my children. और मत्ती रचित सुसमाचार 12:15 में इस प्रकार बता रहा है, और प्रिय बालों के समान इन बातों को तुम और आज्ञाकारी बनो। Brothers and sisters, if you're dedicated to prayer, let me tell you, obedience is demanded of you as you are his children. अगर आप इस प्रकार की एक प्रार्थना जीवन बिताना चाहते हैं तो उनके प्रिय बच्चों के समान एक अनुशासित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। Secondly, we are asked to be disciplined. और हमारी जीवन में इस प्रकार की एक अनुशासन लाने के लिए परमेश्वर चाहता है। After this class, when you get time, please go and read Hebrews chapter 12 verse 5 onwards. There it says every legal child is disciplined by the parents or the father. और आपके पास समय होता है और इसके बाद आप इब्रानियों की पत्री 12 का अध्याय 5 से लेकर जो आगे की पद है उसको आप पढ़ सकते हैं। और वहां पर इस प्रकार बताता है कि एक संतान जो है और परमेश्वर उन्हें और अनुशासित करना के लिए चाहता है। To lead an effective prayer life, your Christian life should be a disciplined one. और एक प्रभावशाली प्रार्थना अगर करना चाहते हो तो आप एक अनुशासित परमेश्वर की संतान होना अति आवश्यक होता है। Disciplined after the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुशासित। Corrected by the word of God. परमेश्वर की वचन से सुधारा हुआ। Corrected by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा से सुधारा हुआ। If you're not willing to take correction from the word of God, if you're not willing to take correction from the Spirit of God, you can't claim that you are a child of God, and your prayer life is not going to be an effective one. यदि आप परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर की वचन से सुधारने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं तो आप इस प्रकार की दावा भी नहीं कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर का एक संतान हूं, और आपकी प्रार्थना बिल्कुल प्रभावशाली भी नहीं होंगे। So you and me have to be disciplined to be a prayer warrior. इसलिए एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए मुझे और आपको एक अनुशासित मसीह जीवन बिताना है। And thirdly, make it sure that we are in a family. और तीसरा विषय, इस बात को आप पक्का कीजिए कि हम एक परिवार में हैं। It's not that I am alone, I am and my God alone. और ये मत सोचिए कि मैं और मेरा परमेश्वर अकेला है। There are so many saints of God along with me. और देखिए बहुत सारे संत लोग हमारे साथ हैं। We all are together, as Paul says, to all who have placed their hope in him, I am going to share the reward with them.
जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि जिन लोगों ने जिन संत लोगों ने प्रभु में आशा बनाए रखे हैं और उन सभीयों को मैं इन समाचार बांटता हूं। How many of us think that there are saints of God besides us? There are saints of God other than us, and we all are in one family. और कितने लोग ये मानते हैं कि हमारे अलावा भी कई सारे संत लोग हुआ करते हैं, वो हम उनके साथ हम एक परिवार में हैं। Many of us are so spiritual and we think, oh, only me and my God. और आप इतना सोचते हो कि आप केवल अधि आध्यात्मिक व्यक्ति हो और केवल मैं और मेरा प्रभु, इतना No, my सोचते dear हो। brothers. No, my बिल्कुल dear ऐसा नहीं है brothers. प्रिय भाइयों बहनों। That's why your prayer life is not effective. इसलिए आपकी प्रार्थना जीवन प्रभावशाली नहीं होता है। There are saints along with me and you in this world who surrendered their life for Jesus. और इस दुनिया में मेरे और आपके साथ कई ऐसे संत लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। When we stand with them, we can change the world. जब हम उनके साथ खड़े होंगे तो हम इस दुनिया को परिवर्तित कर सकता है। When you get time, please read the prayer Jesus taught the disciples. और जब आप समय मिलते हैं और समय निकाल कर प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को सिखाया हुआ प्रार्थना पर मनादी कीजिए। Throughout that prayer, Jesus says, our Lord in heaven, our food, our daily bread, don't lead us into temptation and forgive us our sins, is all in plural. और प्रभु ने जब चले लोगों को प्रार्थना सिखाया और पूरी प्रार्थना में इस प्रकार बताता है कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है, ही हमारा दिन भर की रोटी और जो हमें दिया करे और हमारे पापों और इस प्रकार सारे बातों पर और हमें परीक्षा में न लाए, इस प्रकार बताते हुए प्रभु यीशु मसीह हम और उसकी सर्वनाम को इस्तेमाल करते हुए हम अकेला नहीं है कर बता रहा है। Yes, my dear brothers and sisters, we are not alone. प्रिय भाइयों बहनों, हम अकेला नहीं हैं। We are in a community, we are in a family. हम ऐसे एक समाज में हैं, हम ऐसे एक परिवार में हैं। To make your prayer life effective, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होने के लिए get your relation with him in right mode. और उनके साथ जो रिश्ता है उसको सही कीजिए। Mend your relation. आपकी प्रार्थनाओं को आप सुधारिए। If anything lacks, we discussed here. और जो भी यहाँ पर जो हमने चर्चा किया है, So many things you can add to it when you read the Bible. और उसके साथ और भी बातों को आप जुड़ा सकते हैं जब इन विषयों को आप जब पढ़ते हैं। Any such thing is lacking in your life, अगर कोई भी ऐसी बातें और उसकी कमी अगर आपका जीवन में है, correct it. उसको सुधारिए। Submit yourself for a correction by the word of God. परमेश्वर के वचन से और सुधारने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। Submit your life for the correction by the Spirit of God. पवित्र आत्मा की और जो सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए। And rededicate your life for an effective prayer. और जो प्रभावशाली प्रार्थना के लिए अपना जीवन को पुनः समर्पित कीजिए। May God bless you with these words. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करें। Thank you for listening so far. May God bless you. और ध्यान से सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। Thank you, sir. The blessed teaching. We are really blessed these days. The classes are really a blessing. And for personally, for me, it's a blessing. I certainly believe all the people will be blessed and they are a blessing. Thank you. Also, Pastor Evangelist B.C. Justin, thank you for translating it. Now it is time for intercessory prayer. Ravi Kiran will lead us in intercessory prayer. Lord, am I audible, Pastor? Yes, Pastor. Thank you, thank you.
Yeah, we will go for intercessory prayer. Before going to intercessory prayers, tomorrow also we will be having the same class, how to improve your prayer life. In the same timing, from 7 to 8:30 p.m. we will be having with the same Zoom ID as well as passcode. And also we are having a YouTube channel live, Agape Bible Institute Mumbai. So those who are unable to join through this Zoom, there will be recording of the particular classes will be available, as well as live is also available. Requesting you all to subscribe YouTube channel, and you can watch from there also. And as far as another thing is concerned, another announcement is there will be morning intercessory prayers also going on. So where we are praying for our nation, as well as for the people, those who are in prayer needs, you can send